Hello everyone. This is your science teacher Diksha. Students, hope you all are doing well. This one is our lesson number 11, light, shadows and reflection, and we are on our part 2. So in our previous part, students, if you have revised properly, you must be remembering this, you must be retaining all of it. We talked about sources of light. तो हमने natural और artificial sources of light के बारे में पढ़ा था. Then also we talked about luminous and non-luminous objects, and finally we saw the rectilinear propagation of light. That means light travels in a straight line. Okay. Now students, in this particular video session, we are focused on shadows, how shadows are created, okay, and how different objects are interacting with the light. So this is our first topic of the day, how opaque, transparent and translucent objects interact with light. So for that we need to have this activity, we need to understand, we have to do this activity. Basically this is something which is extremely easy, you can do it on your own. तो यहाँ क्या करना है students आपको, you have to take some materials. So first of all you have to take the source of light, that is a torch. Then you have to take several objects which I will tell you. And finally, you have to take a screen. Now, screen is what? Any surface. So, it can be a wall, okay? It can be a cardboard sheet, right? अब करना क्या है स्टूडेंट्स, अब आपको ये देखना है, एक डार्क रूम में इस एक्टिविटी को परफॉर्म करना है. एंड व्हेन यू फ्लैश दिस लाइट on the wall, okay, if there is no object in between, simply you are flashing the torchlight on the wall or the cardboard sheet which you have taken. You will see that a bright spot is created. ठीक है, लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हुए यहाँ पे एक ब्राइट स्पॉट क्रिएट करे है. नाउ स्टूडेंट, सिंस लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन, तो अगर मैं यहाँ बीच में ऑब्जेक्ट रख लूँ कोई, ठीक है, लाइट सोर्स और स्क्रीन के बीच में आई हैव टेकन एन ऑब्जेक्ट. नाउ दिस ऑब्जेक्ट कैन बी अ बॉल, okay, you can take a glass, you can take tracing paper, a normal paper, a thick cloth, okay. Put these materials one by one in between the light source and the screen. You will observe something. जैसे अगर मैंने यहाँ पे बॉल रखी तो यहाँ पे मुझे कुछ डार्क रीजन नजर आएगा जो वॉल पे या कार्डबोर्ड शीट पे बन गया है. ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, when you take materials, different kinds of materials in between the light source and the screen, you will see that the light is getting obstructed by these materials. क्योंकि लाइट का पाथ क्या हो रहा है, बीच में ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है, एक तरह का बीच में क्या हो गया, ब्लॉकेज हो रही है. अगर आप कोई बीच में चीज रखते हैं, यहाँ पे कोई भी मटेरियल रखते हैं, तो यहाँ पे लाइट का पाथ ब्लॉक हो रहा है. अब कुछ मटेरियल्स इस लाइट के पाथ को बहुत ज्यादा ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है, जैसे कि ये बॉल will completely block the path of light, and that's why it is creating a dark patch, because light is not passing in this area. बेसिकली लाइट यहाँ पे इस एरिया में ट्रैवल नहीं कर पा रही है, यहाँ पे ब्लॉक हो रही है. तो जहां पे भी लाइट ब्लॉक होगी वहां क्या होता है, इट्स कंप्लीट डार्कनेस. तो इस एरिया में क्या हो गया, इस एरिया में एक डार्कनेस है. दैट्स व्हाई अ डार्क पैच इज फॉर्म्ड ऑन द वॉल. क्लियर. अब यहाँ पे मैं और कोई मटेरियल लूं जैसे कि ग्लास. सो इफ आई टेक ग्लास, देन यू विल सी दैट मोस्ट ऑफ द लाइट इज पासिंग एंड यू कैन स्टिल सी द ब्राइट पैच. ओके, यहाँ पे लाइट का ब्राइट पैच आपको अभी भी वॉल पे नजर आएगा. दैट मीन्स ग्लास इज नॉट स्टॉपिंग द लाइट. ओके, एंड इफ यू टेक अ ट्रेसिंग पेपर इन बिटवीन, देन यू विल सी दैट सम ऑफ द लाइट इज गेटिंग ऑब्स्ट्रक्टेड, बिकॉज यहाँ पे जो आपको डार्क पैच नजर आएगा वो थोड़ा सा नजर आएगा, यानी कि आपको यहाँ पे एक लाइट शैडो नजर आएगी या लाइट डार्क पैच नजर आएगा, नॉट एज डार्क एज created by the ball. Okay, so that means students, different kind of materials interact with light in different ways. There are some materials which allow all the light to pass through it, and that's why they are known as transparent materials. They will allow, or they will let ऑलमोस्ट ऑल द लाइट पास थ्रू देम. तो अगर लाइट किसी भी मटेरियल से पास हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, कि उसके थ्रू हम क्लियरली देख सकते हैं, लाइक अ ग्लास. That's why glasses are, installed in the windows, so that we can have a clear view of what is outside the window, right? So light coming from all those trees and people outside, it enters the glass and then it enters our eyes, and that's why we are able to see the whole view. Are you getting my point? तो इस तरह के मटेरियल्स जो लाइट को अपने थ्रू पास होने देते इजीली, उसे हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट मटेरियल. लेट्स टॉक अबाउट अनदर मटेरियल नोन एज ट्रांसल्यूसेंट. नाउ दीज kinds of materials allow a little light to pass through it, and some light is blocked. So some light is blocked, some light it lets it pass. Okay, so for example, we have tracing paper
और अ टिंटेड ग्लास, ओके, सन ग्लासेस में जैसे आपने देखा होगा, आप सन ग्लासेस क्यों पहनते हैं? बिकॉज लाइट इज, इट अलाउज सम लाइट टू पास थ्रू, दैट्स व्हाई वी आर एबल टू सी। आप सन ग्लासेस से व्यू देख सकते हैं, बट आपने ये भी देखा होगा कि काफी सारी सनलाइट कट ऑफ हो गई है ना, इसीलिए आपको अंदर डायरेक्ट सनलाइट नहीं जाती है, बिल्कुल क्लियर व्यू, लाइक स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स में आपको बिल्कुल क्लियर व्यू नजर आता है, बट सन ग्लासेस में आप ये देख सकते हैं कि लाइटर व्यू होता है, राइट, वी कैन सी बट partially. So here the tinted glass is an example of translucent material. Similarly tracing paper आपको थोड़ा सा नजर आएगा but clearly नजर नहीं आता है. Frosted glass is another example of translucent materials. So all these materials will allow light to pass through them partially and we can see through them but not very clearly, okay? And finally we have opaque objects which will not allow any light to pass through them. So we have your notebook, okay, your notebook, a football, all these are examples of opaque objects, a wooden block. So if the path of light is completely blocked, that means whatever is there, okay, agar aap kisi bhi object, if any object is there, for example a leaf is there, okay, and you are keeping an opaque object in between like a backpack, okay, so light from the leaf cannot travel through the backpack and enter your eye, and that's why you're not able to see the leaf. Is that clear? तो जो भी opaque objects है उसके behind अगर कोई चीज रखी है तो वो आपको नजर नहीं आएगी, because light from that object which is behind the opaque object cannot travel through the opaque objects and enter your eye. Is that clear? So इसलिए students opaque objects light के path को completely block कर देते हैं, इसीलिए हम उनके through नहीं देख सकते. Clear? All right, my dear students, now we will move on to what shadow is. ठीक है, तो ये मैंने आपको पहली बात बताई थी that the dark patch which was formed on the wall, that was the shadow. तो हमने देखा है, हम whenever we go out in the sun we play, so our shadows are created on the ground, isn't it? तो हमने shadows बहुत बार observe की होंगी. Basically shadow होती क्या है? Shadows are created when an opaque object is placed in the path of light and the path of light is getting blocked. And that's why that particular dark patch is where the light is not reaching. कोई dark patch क्यों बनता है? जब वहां पे light पहुंच नहीं पाती तो वहां darkness होता है. Wherever there is no light, there will be darkness. तो अगर कोई opaque object light का path block कर रही है तो उस portion में light नहीं आएगी. So that's why a dark region is created on the opposite side, right? So this is what we call as shadow, the dark patch which is formed when the opaque object is blocking the path of light. Clear? All right, तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा. अब हमें ये देखना है कि क्या सभी ऑब्जेक्ट्स शैडो क्रिएट कर सकती है, करती है, बट टू डिफरेंट एक्सटेंट. सो वी नो दैट ओपेक ऑब्जेक्ट्स दे ब्लॉक all the light, so that's why the shadow created is darker. Shadow created is darker. Clear? The translucent object, ठीक है, कुछ प्लास्टिक्स होते हैं जो ट्रांसलूसेंट होते हैं, अगर आप उनमें से लाइट पास करवाएं, if you flash a light over here, you will see the shadow is still created, but it's not as dark as created by the opaque object. That means they create faint, or you can say light, okay, light shadows. Clear? Light or faint shadows. When you talk about transparent objects, so transparent objects में से students most of the light passes, पर कुछ transparent object ऐसे होते हैं जो shadows create करते हैं, पर वो बहुत light shadows होते हैं, very light, very faint shadows, okay? Very faint shadows. Clear? तो ये समझने वाली बात है स्टूडेंट्स कि बिल्कुल शैडोज क्रिएट नहीं होंगी, ऐसा सोचना गलत है. Even transparent objects do form shadows, but they are very, very light shadows, okay? So these are the differences among the shadows created by opaque, transparent and translucent objects. Clear? All right. अब चलते हैं स्टूडेंट्स आगे. अब ऑब्जर्व करते हैं इन शैडोज को कि शैडोज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है, क्या फॉर्म होती है, क्या हमेशा एक जैसी ही होती है, क्या हमेशा ब्लैक ही होती है, क्या हमेशा छोटी बड़ी, क्या वो साइजेस चेंज कर सकती है, ये समझने वाली बात है, ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ऑब्जर्व द शैडोज एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड what are the essential requirements to see a shadow, okay? So
we know that any opaque object is blocking the path of light, then a shadow is created, isn't it? अब स्टूडेंट्स आपको करना क्या है, आपने ये तीन चीज ली है, ठीक है, यू हैव टेकन अ लाइट सोर्स, यू हैव टेकन एन ओपेक ऑब्जेक्ट्स एंड यू हैव टेकन अ स्क्रीन. दिस स्क्रीन कैन बी एनीथिंग. स्टूडेंट स्क्रीन वो कोई भी चीज है जहां पे आप शैडो को देखते हैं. यू कैन सी योर शैडो ऑन द ग्राउंड, सो ग्राउंड कैन बी अ स्क्रीन. You can see your shadow on the wall, wall can be a screen. You can see your shadow on say a tree, so tree can be a screen. Clear? तो यहाँ आपने, क्योंकि अगर यहाँ पे कोई वॉल है तो वॉल एक स्क्रीन की तरह एक्ट करेगा, अगर वॉल नहीं है तो यू हैव टू टेक अ कार्डबोर्ड शीट. ओके, कार्डबोर्ड शीट ले लिया आपने. नाउ व्हाट यू नीड टू डू, आपको ऑब्जर्व करना है. व्हाट यू नीड टू ऑब्जर्व इज इन विच कंडीशंस द शैडो विल बी सीन. अब करना क्या है, आपने लाइट सोर्स तो लिया, पर अभी के लिए आप इसको हटा दो. लाइट सोर्स हटाओ and then you see whether a shadow is created or not, and you have to do this in a dark room. आपने एक dark room लिया है, आपने source of light को on नहीं किया है. Will you be able to see the shadow of the ball? The answer is no. Why? Because the object has to block the path of light so that we can see the shadow, isn't it? अगर opaque object light के path को block नहीं करेगा तो shadow कैसे create होगी, ठीक है? So light source is essential for seeing a shadow. Then रिमूव द ऑब्जेक्ट. अगर आपके पास ये लाइट सोर्स है, आपने इसको ऑन कर दिया है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं बीच में, एंड यू हैव अ स्क्रीन, ओके, विल यू बी एबल टू सी अ शैडो? ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि यहाँ पे आप सिर्फ लाइट को क्या कर रहे हैं, एक डायरेक्शन में भेज रहे हैं. आपको यहाँ पे एक ब्राइट स्पॉट नजर आ जाएगा लाइट का. लाइट जब तक ब्लॉक नहीं होगी किसी ऑब्जेक्ट से, क्या शैडो क्रिएट हो सकती है? नो. सो देयर शुड बी एन ओपेक ऑब्जेक्ट टू सी अ शैडो. अब आपने ओपेक ऑब्जेक्ट रख लिया, पर स्क्रीन को हटा दो. दैट मीन्स देयर इज नथिंग बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, नथिंग इज देयर बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, देयर इज जस्ट अ लाइट सोर्स एंड ऑब्जेक्ट. सो यू हैव स्विच्ड ऑन द लाइट सोर्स ऑब्जेक्ट ब्लॉक भी कर रहा है, इसकी शैडो क्रिएट भी होगी बट वो दिखेगी नहीं, क्योंकि देखने के लिए आपको कुछ सरफेस चाहिए, एंड दैट सरफेस इज अ स्क्रीन. सो इफ यू आर नॉट कीपिंग अ स्क्रीन, इवन दो द शैडो इज क्रिएटेड, you won't be able to see the shadow. Are you getting my point? So that means the presence of screen is also important to see a shadow. Is that clear? तो हमें यहाँ पे 3 essential requirements मिल गई है. We need a light source, we need an opaque object, and we need a screen to see a shadow. Clear? तो हमारी शैडो इसी तरह से फॉर्म होंगी. अगर यहाँ पे इन तीनों में से कोई एक भी गायब है तो शैडो नहीं नजर आएगी, ठीक है? All right. Now let's talk about some characteristics of the shadow created. कि shadow जब create होती है तो हम और क्या क्या observe करते हैं. एक observation ये है that a shadow is formed always to the opposite to the light source. Okay, that means if your light source is to the left, your shadow will create it to the right. तो यहाँ light source ऊपर है, यहाँ पे left ना लेके आप ये कह सकते हो up. Okay, it's in the upward direction, so your shadow will be created in the downward direction. तो अगर मेरा light source इधर है तो मेरी shadow उस तरफ बनेगी, अगर light source इधर है तो shadow उस तरफ बनेगी. If the light source is on top, my shadow will be created at the bottom. Are you getting my point? If the light source is here in this at this angle, my shadow will be created right opposite to the light source. ठीक है, बात समझ आई यहाँ पे? ठीक है, आगे चलते हैं. The next characteristic of shadow is that the shape, size, sharpness of the shadow, it depends on the position of the object relative to the light source and the screen. मतलब आपका light source ऑब्जेक्ट और स्क्रीन से कितना पास है और कितना दूर है, what is the distance, that will tell you what is the size, shape and sharpness of the shadow created. तो आपने देखा होगा अगर आपके बहुत पास में लाइट सोर्स रख दूं तो आपकी जो शैडो बनेगी वो बनेगी बड़ी. ओके, लाइक दिस. सो इफ द लाइट सोर्स इज वेरी नियर टू द ऑब्जेक्ट, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द लाइट सोर्स इज लेस, द शैडो क्रिएटेड इज बिगर. अब आप इसी ऑब्जेक्ट को और दूर ले जाइए, मतलब स्क्रीन के पास. इफ द ऑब्जेक्ट इज टेकन नियर टू द स्क्रीन एंड फार्दर फ्रॉम द लाइट सोर्स, देन व्हाट विल हैपन, ये जो आपकी शैडो का साइज है वो धीरे 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 छोटा होता जाएगा. तो जैसे जैसे आप इस बलून को आगे लेकर जाएंगे स्क्रीन के पास, वैसे वैसे शैडो का साइज छोटा होता जाएगा. इसका मतलब ये कि डिस्टेंस अब यहाँ पे लाइट सोर्स और आपके ओपेक ऑब्जेक्ट का इंक्रीज हो गया है. सो एज यू इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द सोर्स ऑफ लाइट, द शैडो क्रिएटेड विल बी स्मॉलर इन साइज. क्लियर?
ठीक है। अब बहुत ही अच्छी बात है यहाँ पे, इफ यू चेंज द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट, विल इट हैव एनी color change in the shadow? Will the shadow be of any other color? If you are taking a red ball and a blue ball, will your shadows have any different color? We have seen in our daily life that we don't see any colored shadow, okay, although colored shadows can be created, okay, but नॉर्मल टाइम में स्टूडेंट्स अगर आपके पास अलग अलग कलर्स के अलग अलग बॉल्स रखे तो उनकी शेडोज हमेशा ब्लैक होगी, ओके। सो द changing the color of the opaque objects that does not change the color of the shadow, okay. So here we have different colored balls and you can see that all the shadows are black, okay. But as I told you, there are some special cases, okay, not always you don't see colored shadows here like that, and under some special conditions, some special cases, we can create colored shadows, but that we can see sometime else, okay. But this is what the general case is. Generally, shadows are black in color, okay. The shadows may give information about the object or we may not be able to guess the object at all. तो shadow से हमें कुछ idea होता है. Shadows give a simple idea that what is the outline of the ऑब्जेक्ट, राइट। वो बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं बताएगा आपको, ऑब्जेक्ट की हर डिटेल नहीं बताएगा, कलर भी नहीं बता सकता, बट एक आउटलाइन जरूर बताता है, राइट। सो इफ आई हैव अ बॉल इन अ हैंड, उसकी शैडो सर्कुलर क्रिएट होगी तो उससे पता चलता है कि एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट होगी या स्फेरिकल ऑब्जेक्ट होगी। बट sometimes we are not able to guess the object because it can deceive us, ठीक है। कैसे? We have all done this, okay, we have created the shadows with our hands। तो ये यहाँ पे जो हम birds और एनिमल्स की शैडो क्रिएट कर सकते हैं जस्ट बाय आवर हैंड्स। तो ये शैडोज हमें ये नहीं बता रहा कि ऑब्जेक्ट कैसा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो हैंड्स है, हैंड्स की मूवमेंट हम ऐसे रख रहे हैं कि हमें बर्ड लुकिंग लाइक और एन एनिमल लुकिंग लाइक शैडो मिल रही है, बट आर द एनिमल्स रियली देयर? नो, ठीक है। सो समटाइम्स यू कैन से इन मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे टेल अस द शैडो विल टेल अस द आउटलाइन ऑफ द ऑब्जेक्ट, द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, बट हम यहाँ पे अलग अलग शैडोज क्रिएट कर सकते हैं हमारे जस्ट हैंड से। सो मेनी अ टाइम्स वी आर नॉट एबल टू गेस द ऑब्जेक्ट एट ऑल, ओके। तो शैडोज पे आप ज्यादा डिपेंड नहीं होना चाहिए हमें, ताकि हम अपने ऑब्जेक्ट को पहचान सके। बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी शैडो पे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, हियर वी कम टू द डिस्कशन और द एंड टू द डिस्कशन अबाउट शैडोज। बट बिफोर वी रियली एंड द सेशन, हम चलते एक फैसिनेटिंग फैक्ट को देख लेते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट्स। तो ये आप जो यहाँ पे देख रहे हैं, दिस इज एक्चुअली अ शैडो ऑफ, यू कैन से, रावण एंड राम, यू कैन से। सो ये शैडो जो क्रिएट हो रही है बेसिकली एक स्क्रीन पे क्रिएट हो रही है, और ये स्क्रीन हमारी ऑडियंस के लिए। सो देर आर सम पार्ट्स इन आवर कंट्री वेयर शैडो पपेट्री और शैडो प्ले आर ऑर्गेनाइज्ड। तो ये शैडो प्ले क्या करते हैं स्टूडेंट्स? बहुत सिंपल सा आइडिया है यहाँ पे, कि जो स्क्रीन है वो ऑडियंस के सामने है, और स्क्रीन के पीछे बैक स्टेज पे, मतलब आपके यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट है, और उस सोर्स ऑफ लाइट और स्क्रीन के बीच में है फ्लैट कटआउट फिगर्स, ओके। तो ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, दीज आर द फ्लैट कटआउट फिगर्स ऑफ रावण एंड राम। तो उन फ्लैट फिगर्स को लाइट और स्क्रीन के बीच में रखा जाता है, एंड द पपेटियर्स दे मूव दीज फ्लैट कटआउट पीसेस, एंड द ऑडियंस सीज द शैडोज ऑफ दीज पीसेस, कटआउट पीसेस। तो शैडो की मूवमेंट आपको नजर आती है उस पूरे स्क्रीन पर, ठीक है। तो ये होता है शैडो प्ले, राइट। हियर द कटआउट फिगर्स called the shadow puppets are placed in between the light source and the screen, and the puppeteers, by moving these puppets and the light, the puppeteers can create lifelike movements by bringing the characters to लाइफ, ठीक है। तो यहाँ पे सच में चलते हुए नजर आते हैं शैडोज। सो बेसिकली पपेटियर्स ये मूव करते हैं, और इनकी शैडोज मूव करती है, और एक तरह का प्ले क्रिएट किया जाता है। बेसिकली दिस प्ले यू कैन watch in some parts of Maharashtra, Andhra Pradesh, Kerala, कर्नाटका, उड़ीसा। यहाँ पे ये बहुत सारे शैडो प्लेज अभी भी ऑर्गेनाइज होते हैं, एंड दीज आर नॉट जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट, दीज आर ऑल्सो गिविंग यू सम मैसेज, ओके। कम्युनिटी मैसेज देने के लिए भी इन्हें यूज किया जाता है। सो इफ यू गेट एनी चांस टू विजिट सच प्लेसेस, डू विजिट एंड वॉच दिस puppet show, okay। all right students, so here we come to the end, and what did we learn? आज क्या पढ़ा था? आज हमने जाना था कि लाइट
लाइट और ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक ऑब्जेक्ट के साथ कैसे इंटरैक्ट करती है। एंड फाइनली हाउ शैडोज आर फॉर्म, फॉर्मेशन ऑफ शैडोज के बारे में हमने जाना था, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शैडोज फॉर्म, ठीक है, शैडोज की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो भी देखी थी। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, हम जानते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। लेट्स ट्राई टू सॉल्व सम क्वेश्चंस so that we have an understanding whether you understood the concepts or not. Okay, so let's see the first one. Which of the following is required to observe a shadow? A source of light, an opaque object, a screen. But we know we need all of the above. We need all three to see or observe a shadow. Let's see the next. Observe the picture. Choose the correct time with respect to. So, all right. So, with respect to the picture. So just observe this picture, right? And this is A, this is A, this is B, this is B, and this is C. Okay, A, B and C, these are the three conditions. Okay, or you can say situations. Kya situation, students? Here the sun is in this direction, the shadow is created in the opposite direction. Here the sun has come just overhead and the shadow is created a little smaller. And here in this direction we have the sun here, so the shadow is created in the opposite direction. So now you have to tell the time. Okay, what is the time at the picture A, B and C? आपको A, B, C में time को calculate का और आपको time का अंदाजा होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है? So just see the options. Options क्या है? 8 AM, 12 PM, 5 PM, 12 PM, 5 PM, 8 AM. So 8 AM यहाँ पे तीन ही टाइमिंग्स दी, यानी कि स्टूडेंट्स आपको 12 PM, 8 AM and 5 PM. So 8 AM means what? Morning time. 12 PM means just noon, okay? And 5 PM means it's going to be evening. Evening time में जब sun set होने वाला है. So अब आपको बताना है कि A, B और C का टाइम क्या है. So students, यहाँ पे आपको ये दिख रहा है north, south, east, west, right? The directions are given to you. So this direction is east and this direction is west. Basically आपका sun जब यहाँ है तो वो कौन सी direction में है? ईस्ट डायरेक्शन में है. और जब ये घूमते हुए वहां गया तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी हमारी? वेस्ट डायरेक्शन. यू शुड नो दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट. तो अब यहाँ पे जब आपका ईस्ट डायरेक्शन में सन है, दैट मीन्स ये कौन सा टाइम हुआ? ईस्ट में कब होता है सन? राइज होता है. दैट मीन्स इट्स अ मॉर्निंग टाइम. मॉर्निंग टाइम. क्लियर? इट इज द मॉर्निंग टाइम. अब यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या हुआ? धीरे धीरे यहाँ ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहा है, बट ये बीच में है जब सन ओवरहेड है, व्हेन इट्स जस्ट टॉप ऑन ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट्स. जब ओवरहेड होता है सन, डायरेक्ट उसकी सनलाइट यहाँ पे आ रही है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में. ओके, जस्ट ऑन द टॉप. सो यहाँ पे देखो जो शैडो क्रिएट होती है वो स्मॉलर शैडोज क्रिएट होती है, यानी कि ये कौन सा टाइम है? नून. दिस इज द नून टाइम. एंड फाइनली वी हैव द टाइम व्हेन द सन इज सेटिंग. ओके, यानी कि वेस्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब सन सेट हो रहा है, तो ये कौन सा टाइम हो गया हमारा? इवनिंग टाइम. क्लियर? So now you know the time. This is morning, this is noon and this is evening when the sun is setting. अब यहाँ पे आप shadows भी देखिए स्टूडेंट्स. मॉर्निंग और इवनिंग में shadows longer होती है as compared to the shadows created at noon. Why is this is happening? Because of the angle at which the sun is the sunlight is falling on the objects. तो जब मॉर्निंग होती है तो यहाँ पे सन ओब्लिकली सिचुएटेड होता है, मतलब यहाँ पे जो सन की रेज आ रही है या लाइट आ रही है वो काफी एक बड़े एंगल पे आ रही है. दैट्स व्हाई द शैडो क्रिएटेड इज लॉन्गर. यहाँ जब हम बात करते हैं नून की, सो एट नून स्टूडेंट्स द लाइट रेज आर कमिंग डायरेक्टली एट परपेंडिकुलर डायरेक्शन, मतलब 90 डिग्री पे ऑलमोस्ट यहाँ पे लाइट आ रही है, तो इसीलिए यहाँ पे शैडो जो क्रिएट हो रही है इस एंगल पे वो क्या होती है? शॉर्टर शैडोज होती है. और अगेन यहाँ पे इवनिंग में अगेन जब सन सेट हो रहा है तो लाइट अगेन ओब्लिकली आ रही है, एक बड़े एंगल पे आ रही है, इसीलिए आपकी शैडोज लॉन्गर बनती है. ठीक है, तो अब हमें टाइमिंग पता चल गई. ए इज मॉर्निंग, बी इज नून एंड सी इज इवनिंग. सो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है. A is 8 AM, B is 12 PM and C is 5 PM. All right. So my dear students, here we come to the end of our session 2. आज हमने शैडोज के बारे में डिस्कस किया था, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, व्हाट आर द एसेंशियल कंडीशंस टू ऑब्जर्व अ शैडो. ओके, सो होपफुली यू हैव अंडरस्टूड ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स. नेक्स्ट व्हेन वी विल मीट वी विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ reflection of light. So stay tuned for that. Please revise this part. Thank you so much for watching. Please take care.